Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Shalom. Glory to the name of the Lord. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. सबको जय मसीह की. Sorry for being a little bit late today. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Hope you are doing well, Brother Lalit Mehra. I hope you are doing well. Hallelujah. सबको जय यीशु मसीह की. Hallelujah. Hallelujah. Please come quickly. Hallelujah. Lord, we thank you, we praise you, we bless you, Lord. Lord, we surrender this morning into your hands, Lord. We come at your feet, Lord Jesus. Lord, your feet is a dwelling place. Your feet is the place of a respite, Lord. Your feet is a heaven, a paradise, Lord. We bless you, Father. We magnify your name, Jesus. Hallelujah. तेरे जलाली नाम में हम तेरे सन्मुख आते हैं यीशु मसीह आज की सुबह. प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी ओर खींचे. प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा अपने और नज़दीक, अपनी कुर्बत में खींचे, अपनी पहचान में, बुद्धि में, प्रभु डील डॉल में हमें बढ़ाएं. और यहोवा के खौफ के रूह में, रूहा खौफा में हमें बढ़ाएं खुदावन. हालेलुया. Lord, cause us grow in ruach khaufa, the spirit of the fear of the Lord. Cause us grow in the spirit of the fear of the Lord. Cause us grow, Lord, in the spirit of the fear of the Lord. Hallelujah. प्रभु आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो. सब प्रार्थना करें. प्रभु अपने वचन को खोलें, अपने वचन की रोटी को तोड़ें. प्रभु जी, जब आप रोटी तोड़ते हैं प्रभु, तब आंखें खुलती हैं और हम आपको पहचानते हैं. आपका एक और गहरा, एक और नया, एक और अद्भुत प्रकाशन हमें मिलता है. सो लॉर्ड, मे यू ब्रेक द ब्रेड. हालेलुया, हालेलुया. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मनोहर लाल के लिए, दिल्ली से, उनके घराने के लिए. प्रभु उनको, उनके घराने को, उनके भाई के घराने को आपके लहू में छिपाता हूँ. साहिल भाई के लिए पाकिस्तान से, उनके पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ. प्रभु मैं ब्रदर इमैनुअल होता के परिवार को, उनके बच्चों, बीवी को, सबको आपके हाथ में छिपाता हूँ. Lord, I pray for Pastor Sarvesh Kumar Divakar from Delhi. Bless him. Bless his daughters, Lord. He has lovely daughters. They love you and serve you. Bless this man's household. Father, I pray in Jesus' name, open many, many new doors for this man's ministry. Hallelujah. And bless his daughters in particular, Lord. Bless Pastor Satpal from Malia and his children, his family. जसवीर सिंह सुरेंद्र को यीशु मसीह के लहू में हम छिपाते हैं. लॉर्ड, आई प्रे फॉर हरपाल बाजवा. ब्लेस ब्रदर हरपाल एंड हिज फैमिली. सबको बरकत दे खुदावंद. रिचा मसीह को छिपा अपने लहू में खुदावंद. उसके घराने को, मलकियत गिल को प्रभु आपके लहू में छिपाता हूँ. ब्रदर ललित को छू ले खुदावंद. उनके गले को, कफ, रेशाई, उनके यीशु मसीह के नाम से दूर हो उस भाई के जीवन से. लॉर्ड, टच युवराज जस्सी. आई सपोज ही इज़ फ्रॉम the European nation. Bless him, Father. May your hand be upon him. I also pray for Karamjeet Kaur. Bless her family. Lord, bless Robbie John. Lord, bless his ministry. Bless Brother Robbie's ministry. Bless his father, mother, his family, and his brother who is in Italy, Lord. Hallelujah. Rakesh Kumar from Mehpur. Lord, bless you. Bless your family. Hallelujah. प्रभु हम माता आशा जी को भी आपके लहू में छिपाते हैं महतपुर से. Lord, I pray for Brother Ron. Lord, once again I lift up his son, Ronnie. Lord, I commend that young man into the custody of the Holy Spirit as he will be operated on, Lord, that your presence will invade that operation theater, Lord, that your spirit will hijack the doctors and the nurses, that the Holy Spirit will do the surgery. I speak life over his son. I bless this man. Bless all he does for your kingdom. I bless Pastor Chad that he's connected with, the entire ministry. Father, we take this opportunity to cry before your throne of grace for America. The anarchy, the devastation, the catastrophe, the lawlessness that is happening in the United States of America. The demons are unleashed, Lord. The
forces of darkness, the globalists, the deep states, Lord, those foul, demonic, occultic powers that want to destroy America, that are standing against President Donald Trump. Lord, we bind those fiendish forces in the mighty name of Jesus. Lord, I release angelic host in the United States of America. From the north to the south, east to the west, Lord, let your angelic forces march in the name of Jesus. You will bring again President Donald Trump to be the President of the United States of America for the second time, Lord. Hallelujah. Thank you, Father, that your Spirit will move and revival will come. And Lord, these people who defy you, Lord, they lift up their fist against you. And Lord, they challenge you. They will humble their knees before you. And a great revival will come in America, Lord, in Jesus' name. तेरे लहू की जय जयकार करते हैं खुदावंद, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु, आज अपने वचन से हमसे बोलना और बातें करना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। वी बीन स्टडिंग ऑन why they killed Jesus and who were the sole agents who perpetrated this vicious plot, hatched this great conspiracy and put Jesus on the cross. तो हम पढ़ रहे हैं फरीसियों के विषय में, सदूकियों के विषय में, एल्डर्स, चीफ प्रीस्ट और जो रब्बी थे। तो मैं आपको बता रहा था, when people of Israel were in the land of bondage, the northern kingdom went to Assyria and the southern kingdom went to Babylon. तो जब ये गुलामी में गए तो टेम्पल नहीं था इनके पास, व्यवस्था नहीं थी इनके पास, परमेश्वर के सच्चे दास नहीं थे इनके पास। तो इन्होंने टेम्पल की जगह सिनेगॉग को खड़ा किया। आप नए नियम में पढ़ते हैं, यीशु मसीह भी सिनेगॉग में गया और हम देखते हैं प्रेरित पौलुस अक्सर सिनेगॉग में जाता है। सिनेगॉग जो है, विच मीन्स प्लेस ऑफ गैदरिंग। सिनेगॉग, ये जब ये लोग गुलामी में चले गए उस समय सिनेगॉग पैदा हुई। सिनेगॉग परमेश्वर का ओरिजिनल आइडिया नहीं है। और इन्होंने क्या किया, टेम्पल को सिनेगॉग में रिप्लेस किया और जो यहोवा का महायाजक होता था, याजक होते थे, लेवी होते थे, उनकी जगह इन्होंने रब्बी लोग रखे। चीफ रब्बाई ने यहोवा के महायाजक की जगह ले ली। तो ये व्यवस्था जो इन लोगों ने बनाई, ये यहोवा की ओर से नहीं थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो परमेश्वर का कलाम था इब्रानी में लिखा था, हिब्रू में लिखा था। तो ये वहाँ पे रहते रहते ईस्टर्न एरामिक बोलने लगे, क्योंकि ईस्टर्न एरामिक बोली जाए। एरामिक भाषा के अरामी के एक वेस्टर्न डायलेक्ट था, एक ईस्टर्न डायलेक्ट था। तो ये ईस्टर्न अरामी भाषा बोलने लगे। और फिर मैंने आपको बताया कि इनके जो रब्बी थे, जिन्होंने रिप्लेस किया महायाजकों को, इनके रब्बियों ने परमेश्वर के कलाम का तर्जुमा किया ईस्टर्न एरामिक में, और उसे हम हगाडा बोलते हैं। और फिर इनके रब्बियों ने कमेंटरीज की। When they were in Babylon, since Brother Ron is online, so I will be speaking a bit of English. Since the people of Israel were in the land of bondage, after 2 or 3 decades, they forgot Hebrew. They were speaking the local dialect, and people there were speaking Eastern Aramaic. So they were speaking in Aramaic, and eventually they translated the law of the Lord into the Eastern Aramaic, which is called Haggadah. But the Pharisees believed that the law that God gave to Moses, there was another law that was orally given to Moses, and Moses gave to the chief priest and the elders of the people of Israel. So जो oral law है, the oral law was never written. The oral law was transmitted from generation to generation orally, and it was not supposed to be written down. So these Pharisees, they gave credence to the oral law, and they did not give that value to the written law of God. परमेश्वर के जो जिंदा कलाम था, जो परमेश्वर ने मूसा को दिया लिख के,
उस परमेश्वर के कलाम को ये दूसरे दर्जे पे रखते थे, और जो ऑरल था, मुंह जवानी दी गई व्यवस्था थी, उसको पहले दर्जे पे रखते थे। तो ऑरल जो कलाम था उसको इन लोगों ने कंपाइल किया, उसकी टिप्पणी को, उसके ऊपर जो टीका टिप्पणी की, कमेंटरी की, और उसका नाम था हलाका। क्या नाम था? हलाका। तो ये लोग हलाका को मानते थे, परमेश्वर के जीवित कलाम को नहीं मानते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना पहला प्रचार शुरू किया, मैं आपको बताऊंगा आज मत्ती रचित सुसमाचार में से, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा उसे बियाबान में ले गया, 40 दिन 40 रात उसकी आजमाइश हुई। उसके बाद वो शैतान को हरा के पवित्र आत्मा से भरा हुआ लौटा, और उसने पहाड़ पे जाके उपदेश देना शुरू किया। तो पहाड़ी उपदेश बड़ा खूबसूरत है। दुनिया को बहुत ज़बरदस्त फिलॉसफी दिखाई देती है पहाड़ी उपदेश में, है भी, परमेश्वर की सबलिम फिलॉसफी है। उसमें यीशु मसीह ब्लेसेड लोगों से बात करते हैं, धन्य है वे, धन्य है वे। 8 तरह के लोग हैं वो जो धन्य हैं, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स है। धन्य है, धन्य है, ब्लेसेड आर द मीक, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, ब्लेसेड आर दोज हु मेक पीस। यीशु मसीह धन्य धन्य लोगों की बात करते हैं। लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, आपको मालूम, मत्ती 5 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 7 अध्याय, पूरे का पूरा it is called the Sermon on the Mountain. Not merely the blessed ones that Jesus talked about in the Sermon on the Mountain, but the entire Matthew 5, Matthew 6 and Matthew 7. It is all part of the sermon of the Lord Jesus Christ on the mountain. So in the Sermon on the Mount, Jesus is talking about blessed people who are meek, who are humble, who are hungry and yearning for God, who walk in righteousness, who are upright, who seek God, who long for God, hunger for God, who are peacemaker. Peacemaker means they are the ones who make peace between God and man. They are not pseudo peace creator globally. They are the ones who are carrying the gospel and reconciling man with God. And Jesus is calling them blessed, blessed, blessed. But जिनको Jesus blessed कह रहा है, the one Jesus is addressing as blessed one, with them he is talking about the Pharisees. And believe me, Jesus in his very first sermon, यीशु मसीह का पहला सरमन है ये, यीशु मसीह ब्लास्ट कर रहा है फरीसियों और सदूकियों को। स्वीटी स्वीटी गुडी गुडी कैंडीज नहीं दे रहा, आज मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पहले ही सरमन में धर्म के ठेकेदारों को ब्लास्ट कर रहा है। पढ़ें सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार जल्दी से, बाद में हम पहाड़ी प्रदेश में आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, मैथ्यूज चैप्टर नंबर 7 और उसके 6 वचन से मैं पढ़ता हूँ। उसने उनसे कहा, यशाया तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यीशु मसीह फरीसियों को हैमर कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि तुम प्रभु का आदर होठों से करते हो पर तुम्हारा हृदय, मन परमेश्वर यहोवा से दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। क्या करते हैं? किसकी आज्ञा सिखाते हैं? मनुष्य की आज्ञा सिखाते हैं। मनुष्य के ट्रेडिशन, मनुष्य के रीति रिवाज, मनुष्य की परंपराएं, अपनी डिनोमिनेशन के अकीदे, अपनी डिनोमिनेशन की विशेष किस्म की तालीम, शिक्षा सिखाते हैं। और क्या करते हैं? मनुष्य की आज्ञा को सिखाते, धर्मोपदेश करके सिखाते हैं क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल कर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। परमेश्वर यहोवा की आज्ञा उसका क्या है? ये जीवित कलाम है, ये इसके अंदर जो लिखा गया है, इसको टालते हो और किसको मानते हो? मनुष्य की परंपराएं, मनुष्य की रीति, मनुष्य के रिवाजों को तुम लोग मानते हो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। पढ़िए एक वचन मेरे साथ जल्दी से, मत्ती रचित सुसमाचार में आइए, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूज, इसका 15 अध्याय। मैंने कल ये वचन दिया आपको, लेकिन आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। मत्ती 15 में आइए जल्दी से, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़िए। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने, कौन है ये लोग? फरीसी और शास्त्री हैं। कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं?
कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा को टालते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, पर जो कोई माता पिता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो। अब अगर मत्ती 5 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह इसी चीज़ को कहते हैं। यीशु मसीह अपनी पूरी शिक्षा में क्या कहते हैं कि परमेश्वर यूँ कहता है, तुम ये कहते हो। परमेश्वर ये कहता है, तुम ये कहते हो। फिर मत्ती में अगर हम जाएंगे तो पढ़ेंगे हम, मत्ती में प्रभु कहते हैं क्योंकि कहा गया है, क्योंकि कहा है ये, परंतु मैं ये कहता हूँ, क्योंकि कहा ये गया है, परंतु मैं ये कहता हूँ। तो यीशु मसीह किस चीज़ के ऊपर हथौड़ा चला रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर आघात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पर तुम कहते हो। ये कौन कहते हैं? ये इनके रब्बी कहते हैं। ये इनके ट्रेडिशन, इनके रीति रिवाज, इनकी परंपराएं, इनके रब्बियों का लॉ है। ये ओरल लॉ है, ये यहोवा का व्यवस्था नहीं है। ये इनके रब्बियों की बनाई व्यवस्था है। रब्बियों ने परमेश्वर के कलाम पे जो कमेंटरी की है, टीका टिप्पणी की है। मैंने कल आपको बताया रब्बी क्या करते थे। रब्बी परमेश्वर के कलाम को लेते थे, उसे स्पिन करते थे, ऐसे घुमाते थे, ट्विस्ट करते थे और कलाम को तोड़ मरोड़ देते थे। आज भी यही काम किया जा रहा चर्च के अंदर। परमेश्वर के कलाम को पास्टर लोग अपनी मर्जी की स्पिन देते हैं और अपनी डॉक्ट्रिन को, अपनी शिक्षा को और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो प्रभु यीशु मसीह जिसके ऊपर एकदम हैमर चला रहे हैं, यीशु मसीह हथौड़ा चला रहे हैं। तुम कहते हो, ये तुम्हारा हलाका कहता है, तुम्हारा रब्बियों का लॉ, रब्बिनिकल लॉ कहता है। तुम कहते हो यदि कोई अपने माता पिता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। क्या था? मैंने आपको बताया 10 जो नियम थे 2 तख्तियों पे थे। एक तख्ती सिखाती है परमेश्वर से रिश्ता कैसे करना है, दूसरी सिखाती है यहोवा से रिश्ता कैसे करना है। तो पहली तख्ती पे नियम जो हैं वो ये सिखाते हैं परमेश्वर से रिश्ता कैसा हो। पहले 4 जो नियम हैं पहली तख्ती पे वो आपको ये सिखाते हैं परमेश्वर से आपका संबंध कैसे बने। लेकिन 4 नियमों के बाद जो 5वां नियम है पहली तख्ती पे, आपको मालूम वो क्या है? तू अपने माता पिता का आदर करना। परमेश्वर यहोवा ने 2 तख्तियाँ ली। एक तख्ती से वो इसराइलियों को सिखाना चाहता मेरे साथ रिश्ता कैसे बनाना है। परमेश्वर के साथ रिश्ते बनाने वाली तख्ती के अंदर ही ये लिखा है अपने माता पिता का आदर करना। अर्थात जितनी वैल्यू, जितनी इम्पोर्टेंस यहोवा परमेश्वर ने अपनी उपासना, अपनी आराधना, अपने साथ इस्राएली प्रजा के संबंध के ऊपर दी है, जितनी वैल्यू, जितनी इम्पोर्टेंस, जितना महत्व, उतना ही महत्व यीशु मसीह माता पिता के आदर के लिए देता है। आपको मालूम वहाँ पे आदर जो शब्द है, अपने माता पिता का आदर करना, इब्रानी भाषा में उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है पैसे से अपने माता पिता की सेवा करना। करते हो आप पैसे से अपने माता पिता की सेवा? ये है यहूदियों की पखंडगिरी, फरीसियों की पखंडगिरी। ऐसे कलाम को स्पिन करते हैं वो। ये कह रहा प्रभु प्रभु कह रहा मेरे पिता की तो ये आज्ञा है। मेरे पिता ने तो पहली ही तख्ती पे माता पिता को 5वें नंबर पे रखा है। आपको मालूम यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहते हैं जो परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, सच्चे आराधक, वो आत्मा में और सच्चाई में पिता की आराधना करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है। आपको मालूम 2 तख्तियाँ क्या हैं जो 10 कमेंडमेंट्स की? पहली तख्ती है आत्मा, दूसरी तख्ती है सच्चाई। पहली तख्ती रूहानी है, माता पिता की सेवा रूहानी जोनर में आती है, जिस्मानी में नहीं है सिर्फ। दूसरी, पहला है आत्मा, पहला है आत्मा, दूसरा है सत्य। आत्मा और सच्चाई से। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर के संग संबंध बनाने के लिए आत्मा में जन्म पाना पड़ेगा, पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा हमें। पवित्र आत्मा ही आत्म स्वरूप पिता से हमें मिला सकता है। पवित्र आत्मा के बगैर कोई पिता को नहीं देख सकता। पवित्र आत्मा के बगैर कोई यीशु मसीह को प्रभु भी नहीं कह सकता। तो पहली तख्ती आत्मा की है, दूसरी तख्ती है ट्रूथ की, सत्य की। आत्मा हमें पिता के संग जोड़ता है, सत्य हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है।
अगर हमारे जीवन में सत्य नहीं तो हमारा कोई मनुष्य के साथ संबंध नहीं बन सकता. Brother Ron, you won't be getting anything. Let me just give you a little nugget that I've been talking about with people. God gave 2 tablets on which he wrote with his own finger the Decalogue, which is in Hebraic perspective called Ketubah, marriage contract with Israel. The first 5 commandments on one tablet and the latter 5 commandments on the second tablet. I was wondering why would God write these 10 commandments on 2 separate tablets, whereas all 10 commandments could have been written on one. But the Holy Spirit made it dawn in my spirit. The first tablet teaches us how we can have relationship with God. The second tablet teaches us how we can have relationship with one another. As a matter of fact, the first 4 commandments on the first tablet teach us how we can have a relationship with God who is Spirit. God who is infinite being, how we have to have a relationship with Him. There are 4 laws that pertain to our relationship, our covenantal relationship with God. But so surprising that the 5th commandment is, which says, love, honor thy father and mother. So God put father and mother, us serving a father and mother, honoring and caring for them at the 5th rank, and in the same tablet in which he described how man can have relationship with God. So how important it is for us to care for our parents and not sending them into the old age homes when they are old, but keeping them with us and serving them and honoring them. And the word in Hebrew for honor thy father and mother, the original Hebrew word means invest your money when your parents are old in their life. Serve them. You know, there is no concept of nucleus families in the Bible. Somehow West wrongly interpreted when God said, for this cause man shall leave his father and mother and shall cleave unto his wife. They derived leave and cleave principle, and they ended up having nucleus families, and they ended up sending their parents in the old age to the old age homes. Under one roof, there have to be all shades of life. Elderly people, your parents, and you and your children. You see, look at Jewish culture. Did not Isaac live with his father after he got married? With Abraham and Sarah? Did he not? Do they have this nucleus system? Did they have this nucleus family systems? Absolutely not. So God put in the same tablet serving and looking after our parents. The first tablet depicts how we can have relationship with God. The second tablet depicts how we have relationship with one another. But God did not put parents in the second tablet, but in the first tablet. You know why people die prematurely? Why people don't have blessed, prosperous life? Because they haven't honored their father and mother. Sow money into your father and mother. You are because of them. You are where you are because they put their lives in you. Don't live a selfish life. If God has blessed you, pay them back. That is why, इसीलिए आपको मालूम बहुत सारे लोगों को आशीष नहीं मिलती, क्योंकि वो परमेश्वर के कलाम को जानते नहीं हैं. वचन में लिखा है अपने माँ या बाप को ऐसे यूं करके मत देखना. You know, I sometimes have tic-tacs with my mother, but I immediately go and reconcile because she is a blessing in her home. And my long life is tied to me serving my mother diligently. Hallelujah. तो ये देखिए how they spinned the word. This was God's divine commandment, Mizbah. You honor your father and mother, which means financially serve them, which means emotionally take care of them, which means be available to them. Jesus is saying, यीशु मसीह कहता है मत्ती 15 में कि प्रभु कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है. किसने कहा है? परमेश्वर ने. आपको मालूम what matters
इज व्हाट गॉड सेज, नॉट व्हाट मैन सेज। बंदे तो तरह तरह की कमेंट्री कलाम पे कर रहे हैं, कई तरह का कलाम पेश कर रहे हैं। आपको वचन देखना है क्या लिखा है इसमें, ओरिजिनल टेक्स्ट में स्टडी करना है, सो दैट यू नो व्हाट गॉड सेज। इट्स नॉट व्हाट योर फेवरेट सेलिब्रिटी पास्टर सेज, इट इज व्हाट गॉड सेज। यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। अपने पिता और माता का आदर करना, और जो कोई अपने माता पिता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो क्या है? ये इनके रब्बियों का लॉ है, रेबिनिकल लॉ है, ये ओरल लॉ है। इस लॉ को ये इस कलाम के ऊपर रखते हैं, ये नीचे रखते हैं, और जो इनके रब्बी कहते हैं उसे ऊपर रखते हैं। ये हलाका है, हगाडा है, ये यहोवा का कलाम नहीं है। फरीसी यहोवा के कलाम को नहीं मानते थे। जो टीचर्स ऑफ द लॉ थे, स्क्राइब थे, सैड्यूसीज थे, वो यहोवा के कलाम को नहीं मानते थे। एल्डर्स ऑफ द पीपल, जो चीफ प्रीस्ट थे, लेवी थे, वो यहोवा के कलाम को नहीं मानते थे। सुनिए ध्यान से। पर तुम कहते हो, यदि कोई अपने माता पिता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। फरीसियों ने क्या बनाया, कितने करप्ट, कितने भ्रष्ट थे ये। यदि कोई जवान उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी घर में आई, बहुत खूबसूरत है, वो अपनी पत्नी के साथ रोमांस करना चाहता है हर समय, उसके माता पिता, उसे लगता है कि रुकावट हैं, उसे लगता है कि उसके माता पिता अनवांटेड हैं। अभी देखा आपने अमेरिका में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल डिस्क्राइब किए जा रहे थे, तो ये सोचता है कि माता पिता शायद नॉन एसेंशियल कमोडिटी हैं। तो वो याजकों के इनके पास जाएगा, इन रब्बियों के पास, ये झूठे ठगों के पास, और ये क्या करेंगे, उसको एक लेटर लिख कर देंगे। उस लेटर का नाम होगा कुर्बान। तो वो लेटर जाके अपने माँ बाप को दिखाएंगे। कुर्बान का मतलब क्या है कि जो मुझे माँ बाप की सेवा में पैसा लगाना था वो मैं हैकल में चढ़ा आया हूँ जाके। और माता पिता को चिट्ठी दिखाएंगे और माता पिता घर से चले जाएंगे और वो हैकल के अंदर जाके रहेंगे, लाचार बूढ़े बूढ़ियों की तरह। ये थी इनका कानून, कुर्बान। यीशु मसीह कहता है तुम कहते हो जो कोई अपने माता पिता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने माता पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। ये क्या है? ये हलागा है, ये कलाम नहीं है यहोवा का। यही काम करते थे, औरत को चिट्ठी लिख के दे के घर से भेज देते थे, मेरा तेरे संग रिश्ता ख़त्म, यू आर अनडन, तलाक हो जाता था। और औरतें जाके विधवा, अनाथ, प्रभु के घर में शरण लेती थी। और वहाँ पे मलाकी लिखता है कि सारे दसवांश मेरे मोदी खाने में लाओ ताकि मेरे भवन में भोजन हो, क्योंकि वहाँ खाना पकता था उस पैसे से। लोग हर चीज़ का दशमांश देते थे। लोग मटकों में शहद लाते थे, मटकों में जैतून का तेल लाते थे, ड्राई फिग, सूखे हुए इंजीर के फल लाते थे, ड्राई फ्रूट लेके आते थे, फल लेके आते थे, दालें, तेल, तिलहन लेके आते थे, कपड़ा लेके आते थे, सोना चांदी लेकर आते थे। प्रभु के भवन के अंदर मोदी खाने थे, स्टोर हाउस, वो वहाँ पे रखा जाता था और लोगों के लिए भोजन बनता था। फिर वो भोजन 40 रुपए की प्लेट नहीं बिकती थी। ये फ्रॉड और ठग लोग हैं जो लोगों को ठगते हैं। फ्री में लोगों को खाना मिलता था। ये कलाम है सच्चा जो आपको बता रहा हूँ। इन झूठे ठगों से जो मार्केटिंग कर रहे हैं प्रभु के नाम की, इनसे बच जाओ। ये गैंग्रीन की तरह खा रहे हैं मसीह समाज को। और परमेश्वर के कलाम, मसीह समाज की तो बात छोड़ो, ये परमेश्वर के, इसकी मुझे पीड़ा है, ये परमेश्वर के कलाम को स्पिन दे के तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हे कपटियो, यशाया ने तुम्हारे विषय में ठीक भविष्यवाणी की है कि तुम्हारी भक्ति केवल होठों का आडंबर है। क्यों तुम्हारी भक्ति झूठी है? क्यों तुम्हारा मन मेरे से दूर है? क्योंकि तुम्हारे काम उल्टे हैं। तुमने हर चीज़ को मनी का, फाइनेंशियल गेन का जरिया बना लिया है। तो आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहता है पहाड़ी उपदेश में? मेरे संग चलें। पहले मैं 15 का ये पढ़ देता हूँ। मैं इंग्लिश में ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहले मत्ती 15, मत्ती रचित सुसमाचार, मैथ्यूज चैप्टर नंबर मत्ती 15। सुनिए ध्यान से जरा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। हालेलुया।
मत्ती 15। अब सुनिए, अब सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह क्या कहते हैं। 3 वचन, मत्ती 15 का 3। बट ही आंसर्ड एंड सेड अनटू देम, वाई डू ई ऑल्सो ट्रांसग्रेस द कमांडमेंट ऑफ गॉड बाय योर ट्रेडिशन। क्या कहता है यीशु मसीह, क्या कहता है? आगे पढ़िए इसका, मैंने हिंदी में तो पढ़ दिया, मैं सिर्फ इंग्लिश में 1-2 वचन ही पढ़ना चाहता हूँ। ये देखिए, दिस पीपल, 8 वचन, ड्रॉएथ नाय अनटू मी विद देयर माउथ एंड ऑनरेथ मी विद देयर लिप्स बट देयर हार्ट इज फार फ्रॉम मी। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? बाय ई ऑल्सो ट्रांसग्रेस, तुम क्यों ट्रांसग्रेस करते हो? तो यीशु, दूसरी ट्रांसलेशन में लिखा है, यू मेक द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नो इफेक्ट। परमेश्वर के कलाम को तोड़ मरोड़ देते हो। यू मेक द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नो इफेक्ट। हालेलुया। क्या करते हो तुम? यू मेक द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नो इफेक्ट बाय योर ट्रेडिशन। तुम्हारे परंपराओं और रीति रिवाजों से परमेश्वर के कलाम को नो इफेक्ट, बेअसर कर देते हो। आपको मालूम, मैंने कल भी शायद आपको बताया, यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड है, यू मेक द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नो इफेक्ट, यू नो व्हाट इट इज इन द ओरिजिनल ग्रीक टेक्स्ट? In the original Greek text, the word is akru, akru, and the root word for this word is kurios. Kurios का मतलब होता है प्रभु। ग्रीक में प्रभु को बोला जाता है kurios. God is kurios in Greek. But if you put alpha, Greek alpha, Hebrew में अल्फ होता है, ग्रीक में होता है अल्फा। If you put alpha in front of kurios, it gives negative meaning. अकुरियोस का मतलब तुम परमेश्वर के कलाम को बेअसर करते हो, उसके लिए ग्रीक वर्ड है अकुरियोस। कुरियोस का मतलब है प्रभु। अल्फा आगे लगा के वो नेगेटिव वर्ड बन जाता है। यू नो, द वर्ड इज अकुरियो, एंड अकुरियो comes from the root word kurios. Kurios means the Lord, the master, your Lord. But if you put alpha in front, it gives you negative meaning. So what Jesus is saying, by your tradition, by your ritual, by your rabbinical law, by your oral tradition that have been transmitted to you by your ancestors, by what your rabbis taught you, the interpretation on the word of God your rabbis gave you, which in Hebrew is called halakha, and the commentary on the word of God, on Torah, Ketubim, Nevi'im and Tehillim, all the different books they have divided in these sections, the Old Testament books. The commentary on that is called Haggadah. Not the true word, but how the opinion of the rabbis is. But the rabbi thinks about it. They don't study the original word. They don't believe the original word. They do not practice the original word. They want to take what the opinion of the rabbi is. तो यीशु मसीह कहता है, you make the word of God of no effect, means you make Jesus not your God. You make Yahweh not your God. So once यीशु मसीह कहता है, तुम अपने ट्रेडिशन, अपने रिचुअल, अपने रीति रिवाज, अपने पुरखों की सिखाई परंपराओं को मानते हो, यहोवा तुम्हारा परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह तुम्हारा प्रभु नहीं है, क्योंकि तुम अकुरियोस कर देते हो। अकुरियोस का मतलब एंटाई लॉर्ड। अब वो तुम्हारा प्रभु नहीं है। आपको मालूम, चर्च के ट्रेडिशन, चर्च के रिचुअल, चर्च के अंदर बनाए इंसान के अपने सिस्टम, इंसान के अपने अकीदे जो चर्चों के अंदर पादरियों ने बनाए हैं, कईयों को तो मालूम भी नहीं है उनकी वैल्यू क्या है। एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे, तीसरे ने चौथे से सीखे। एक सिस्टम, निज़ाम क्रिएट किया है और परमेश्वर के कलाम को रद्द किया। वो इनके जो राबाइज थे वो कहते थे, पैसा हमें दे जाओ, तुम्हारे माँ बाप को चर्च में छोड़ दो, भवन में छोड़ दो, तो रोटी पानी खाएंगे, पैसा हमें दे जाओ। भ्रष्ट लोग थे। अब आइए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार में, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूज, मत्ती उसका 5 अध्याय। दिस इज जीसस sublime, most glorious sermon on the mountain, the most glorious philosophic sermon ever preached in the history of mankind.
द सरमन ऑफ जीसस ऑन द माउंटेन। हालेलुया। तो देखिए, इसको गुडी गुडी कैंडीज मत समझना, भी आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या है। 5 अध्याय, एंड सीइंग द मल्टीट्यूड ही वेंट अप इनटू अ माउंटेन, एंड व्हेन ही वाज सेट his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are now persecuted for righteousness' sake, for they shall be, for there is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. For so they persecuted they the prophet which were before you. यीशु मसीह कुछ लोगों को बोल रहा, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो, ब्लेस्ड हो। 2 तरह के लोग हैं यहाँ पे। एक है धन्य लोग, जो कौन है? जो गरीब हैं आत्मा में, बहुत गरीब हैं रूह में, और जो पश्चाताप करते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, वो हैं जो बहुत हलीम हैं, दीन हैं। वो हैं जिनके अंदर भूख और प्यास है। दे आर सो हंग्री, सो थर्स्टी फॉर गॉड, and they never allow their hunger, their thirst, their yearning and their longing for the Lord and for his presence to ever recede. It continues to accelerate. They are they who hunger and thirst, and this is the present, in the Greek grammar the present participle is used, which reveals ongoing hunger and longing and yearning in the heart of these people, परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो क्या लिखा है? ब्लेसड आर द मर्सीफुल। ब्लेसड, ब्लेसड की बात करता है यीशु मसीह। एक ग्रुप है ब्लेस्ड लोगों का, एक और ग्रुप है यहाँ पे जिसके विषय में अभी आपको मैं बताता हूँ। 5 अध्याय 9 वचन में यीशु मसीह कहता है, ब्लेसड आर द पीस मेकर। आपको मालूम है पीस मेकर कौन है? ये वो पीस मेकर नहीं है जो पृथ्वी पे पीस लाना चाहते हैं। ये वो पीस मेकर हैं जो पाप में जो मनुष्य है, परमेश्वर के खिलाफ रिबेलियन में खड़ा है, उसका यहोवा से मिलाप कराते हैं, अर्थात सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोगों को तौबा की नौबत पर लाते हैं और लोगों को यीशु मसीह का चेला बनाते हैं। अपना नहीं, यीशु मसीह का चेला बनाते हैं। अपना फ़ैन नहीं बनाते। पास्टरों ने बनाए ना पेज, फ़ैन ऑफ फलाना, फ़ैन ऑफ ढमकाना अपोस्टल, फ़ैन ऑफ, अरे भैया फ़ैन वैन किसी के नहीं है कोई भी, समझ रहे हैं? धोखे में मत रहना। जो भीड़ कह रही थी ना यीशु मसीह को कपड़े उतार के रख रही थी, खजूर की टहनियाँ रख रही थी, वही भीड़ 3-4 दिन के बाद कह रही थी इसको क्रूस पे चढ़ाओ और बराबा को हमारे लिए छोड़ दो। यीशु मसीह के चेले बनाओ लोगों को। हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है कि हमें पीस मेकर जो हैं वो ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। तो ब्लेस्ड लोगों से यीशु मसीह बात करता है फरीसियों की। और ये फरीसी कौन है? ये वो हैं जो बाबुल की गुलामी से लौट कर आए हैं, जिन्होंने बाबुल में हलाका लिखा है, जिन्होंने बाबुल में हगाडा लिखा है। और मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसलेशन इन्होंने हगाडा की हिब्रू से अरमिक में, उसको गमारा बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड गमारा इन द हिब्रू लिटरेचर। दे ट्रांसलेटेड इट एंड दे डिडंट ट्रांसलेट वर्ड टू वर्ड। They put their own opinion on scriptures. They did not translate the word into the Aramaic as it is. They put a spin on the scripture and they put their opinion. So Gemara is the opinion of the rabbis. It's not the mind of God. It's not the word of God. फिर उन्होंने हगाडा और हलागा से फाइनली मिशना तैयार किया। मिशना के अंदर 630 लॉज हैं जो कि मूसा की पहली 5 पुस्तकों के अंदर हैं। फिर अल्टीमेटली उन लोगों ने क्या बनाया? टैलमुड बनाया। आपको मालूम टैलमुड कितना बड़ा है? टैलमुड से एक ये जो रैक मेरे, ये देखिए रैक है ना, ये पूरा भर जाएगा टैलमुड से। इतनी बुक्स हैं उसकी, फ़नी लॉज हैं, और बहुत पार्ट इसका डार्क है, डेमोनिक भी है और अकल्टिक भी है। उसी में से कबाला निकला है, जूइश मिस्टिसिज्म विच हैज़ डार्क रूट्स।
और उसी की जड़ों में से फ्री मेसनरी निकले हैं। इलीट्स, ग्लोबलिस्ट, इल्यूमिनाटी, दे ऑल केम फ्रॉम देयर। तो आपको ये समझना है कि यीशु मसीह क्या कह रहा है यहाँ पे। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? 5 अध्याय के 17 वचन में चलिए मेरे साथ। 5 का 17, मत्ती 5 का 17। थिंक नॉट दैट आई एम कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ और द प्रॉफिट, आई एम नॉट कम टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। यीशु मसीह कहता है मैं लॉ को, व्यवस्था को डिस्ट्रॉय करने नहीं, कैटालियो ग्रीक वर्ड है। कैटालियो का मतलब डिमोलिश, थ्रो डाउन एंड डिज़ोल्व। यीशु मसीह कहता मैं व्यवस्था को डिमोलिश, थ्रो डाउन या डिज़ोल्व करने के लिए नहीं आया, बल्कि फुलफिल करने आया हूँ। और आपको मालूम फुलफिल के लिए वर्ड क्या है? फुलफिल के लिए वर्ड है पलेरो, ग्रीक वर्ड है पलेरो, जिसका मतलब है अकम्प्लिश, फुली प्रीच, परफेक्ट एंड सप्लाई। यीशु मसीह व्यवस्था को चरम सीमा पर लेकर गया। यीशु मसीह व्यवस्था को फुली प्रीच करने आया। यीशु मसीह व्यवस्था को परफेक्ट करने आया। ये झूठा प्रचार करते हैं कौन? हाइपर ग्रेस थियोलॉजी वाले, कि व्यवस्था फिनिश्ड है। व्यवस्था आज भी है, लेकिन स्पिरिचुअल पैराडिगम में है। व्यवस्था इटर्नल है, व्यवस्था कभी ख़त्म नहीं हो सकती। परमेश्वर यहोवा इंसान नहीं है कि आज कोई बात कहे और कल उसे रेफरेंडम ला के चेंज कर दे। आज भी चल रही है, स्पिरिचुअल है, उसका पैराडिगम स्पिरिचुअल है। यीशु मसीह कहता है मैं ख़त्म करने नहीं, बल्कि इसको ज़ेनिथ पे पहुंचाने आया। पलेरो का मतलब अकम्प्लिश, फुली प्रीच, परफेक्ट एंड सप्लाई। और आगे इसका वचन पढ़ें। यीशु मसीह क्या? फॉर वेरली आई से अनटू यू टिल हेवन एंड अर्थ पास वन जॉट और वन टिटल। हिंदी में क्या लिखा है? 15 का 16 वचन सुनिए ध्यान से। मत्ती 5 का 16 सुनिए। मैथ्यू 15 एंड 16, सॉरी मैं 18 वचन पढ़ता हूँ। मैथ्यू 5 का 18। क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था की एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। इंग्लिश में लिखा टिटल एंड जॉट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्या है। जॉट जो है वो हिब्रू वर्ड है योड या यॉड, सबसे छोटा अक्षर है, छोटा सा ऐसे ऐसे यूं 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 यूं, वो जॉड है, सबसे छोटा अक्षर है यॉड। और टिटल क्या है? जैसे हिब्रू का वर्ड होता है ना बेथ, ऐसे बेथ ऐसे बनता है बेथ। बेथ के नीचे हल्की सी लाइन आप लगा देंगे, ऐसे ऐसे रैश होता है, पहले यूं बनेगा रैश, रैश के ही से हल्की सी लाइन लगा देंगे तो वो बेथ बन जाएगा। समझ रहे आप? ये निकुटिम बोलते हैं इनको। हल्की सी बिंदी यूं लगाई तो उसका अर्थ बदल जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं कि जॉट एंड टिटल से थोड़ा सा अर्थ बदलता है। यीशु मसीह कहते हैं जॉट एंड टिटल भी नहीं बदलेगी। पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उनको? यीशु मसीह कहते हैं तुमने पूरे कलाम को ही बदल डाला है। तुम वो सिखा ही नहीं रहे जो यहोवा कहता है, तुम वो सिखा रहे हो जो तुम्हारी इंटरप्रिटेशन कहती है। तुमने अपने ढंग से कलाम को तोड़ा और मरोड़ा है। और देखिए आगे क्या कहते हैं प्रभु। इसका 19 वचन क्या कहते हैं प्रभु? देयरफॉर whosoever therefore shall break one of these least commandments and shall teach men, so he shall be called least in the kingdom, but whoever shall do and teach them shall be called great in the kingdom। यीशु मसीह कहते हैं जो एक ये छोटी सी निकुटिम है या छोटा सा यॉड है, इसको भी हेरा फेरी करके कलाम सिखाता है, वो परमेश्वर के राज्य में छोटा गिना जाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं आगे तुम्हारी राइचियसनेस, तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़नी चाहिए। तो फरीसियों की राइचियसनेस क्या है? परमेश्वर के कलाम को स्पिन देना, परमेश्वर के कलाम को तोड़ना मरोड़ना, रब्बियों की बातों को, अपने फेवरेट प्रीचर ने क्या सिखाया है उसको आगे रखना। आपको मालूम लोग आजकल लोग पादरियों के, फेमस पापा डैडियों के लॉयल हैं, लेकिन कलाम के नहीं हैं। वो ये भूल गए हैं कि तुम्हारे लिए यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा है, तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने रक्त बहाया है,
तुम्हारे लिए यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठा मध्यस्थ की हाई प्रीस्टली प्रेयर करता है। तुम यीशु मसीह की दुल्हन हो, पादरी की नहीं हो, और तुम्हें इसके संग जुड़ना है, बंदे के संग नहीं जुड़ना, मिनिस्ट्री के। मेरी मिनिस्ट्री कुछ भी नहीं है, मैं अपनी मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता। मिनिस्ट्रियाँ कल्ट बन गई हैं। लोगों को मिनिस्ट्री के संग नहीं भैया, इसके संग जोड़ना है, यीशु मसीह के संग जोड़ना है, यीशु मसीह के ज़िंदा कलाम के संग जोड़ना है। हमारा मकसद ये है, लोगों को यीशु मसीह के संग जोड़ना, यीशु मसीह के लहू की धार के साथ बांधना। हालेलुया। तो फरीसी जो ट्विस्ट करते हैं स्क्रिप्चर, वो ट्विस्ट नहीं करना। आगे पढ़ें क्या यीशु मसीह कहते हैं 21 वचन में, ई हैव हर्ड दैट इट वॉज सेड। अब देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिर किसी समय आपको इसके अंदर ये बताऊंगा यीशु मसीह क्या कहते हैं। सुने हिंदी में, सुनिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था। तुम सुन चुके हो कि ये कहा गया। ये क्या है? ये परमेश्वर यहोवा का कलाम नहीं है, ये इनके रब्बियों का कलाम है, ये ओरल लॉ है, ये रबीनिक लॉ है। जहाँ भी कलाम में व्यवस्था को विलन की तरह दिखाया जा रहा है, वो यहोवा का कलाम नहीं है, यहोवा की व्यवस्था नहीं है, वो इंसानों की बनाई व्यवस्था है, रब्बियों की व्यवस्था है। वो कलाम को स्पिन दे के, ट्विस्ट करके, तोड़ मरोड़ के जो व्याख्या की गई है, जो लोगों ने सीखी, ये कलाम तो था ही नहीं उनके पास जब यीशु मसीह आया। ये सच्चा पैगाम नहीं था। इस कलाम की जो खुलासा उनके रब्बियों ने किया है, उनके बुजुर्गों ने, एल्डरों ने किया, उनके रब्बियों ने किया, उसको वो मानते हैं, इसको नहीं मानते। प्रभु क्या कहते हैं? कहते तुम सुन चुके हो। जब भी यीशु मसीह ये बात कहते हैं, इट इज सेड, यू हैव हर्ड, बट आई से अनटू यू। यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुमसे कहा गया था हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड की होगा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं। यीशु मसीह इन फरीसियों को, सदूकियों को, पुरोहितों को, शास्त्रियों को, धर्म के ठेकेदारों को ये बता रहे हैं कि जो किताबें तुम पढ़ रहे हो, हगाडा, जो हलाका तुम पढ़ रहे हो, जो मिशना, जो टेलमड तुम पढ़ रहे हो, जो गमारा तुम पढ़ रहे हो, वो यहोवा का कलाम नहीं है। तुम तो ये कहते हो, तुम्हारी परंपराएं, रीति रिवाज, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे रब्बियों का कलाम के ऊपर क्या ओपिनियन है, तुम तो ये सिखाते हो, बट दैट डजंट मैटर। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे ये कहता हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं हूं जिसने कलाम लिख के दिया मूसा को पहाड़ के, मेरी उंगली ने लिखा, मेरी उंगली ने, मैंने मैसेज दिया इसके ऊपर आपको। यीशु मसीह क्यों ज़मीन के ऊपर लिख के उंगली से अपनी कुछ लिखते हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं मैंने लिख के दिया ये कलाम, मेरी उंगली से लिखा गया है। मैं तुमसे ये कहता हूं, ये नहीं कि तुम्हारी ओपिनियन क्या है, तुम्हारा टीका टिप्पणी क्या है, तुम्हारी कमेंटरी क्या है, दैट डजंट मैटर। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे ये कहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का देहधारी कलाम है, यीशु मसीह जिंदा कलाम है। हालेलुया। आपको मालूम, मैं आपको हम मनन ये कर रहे हैं कि वो सरपेंट का सीड कौन है, किन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया और क्यों क्रूस पे चढ़ाया, ये टाइटल है। अब मैं आपको मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर लेके चलता हूँ। चलिए मेरे संग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में, 21 अध्याय में, मत्ती 21 के 12 में। अब ध्यान से सुनिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय, मैं दोनों में पढ़ता हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती 21 के 12 को सुनिए। And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of money changers and the seats of them that sold doves. And said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer, but ye have made it den of thieves. Hallelujah. क्या लिखा है? 12 वचन, मत्ती 21 का 12 सुने। यीशु ने मंदिर, परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। जो बिक रहा था ना, तेल बिक रहा था शीशियों में, अभिषेक का तेल, ब्लड भी बेच रहे थे। हमारे इंडिया के जो कई नबी हैं ना, इनके पापा डैडी ब्लड भी बेच रहे थे, ब्लड ऑफ जीसस। मिट्टी भी बेची इन्होंने, पानी भी बेचते हैं। अब देखिए, एक अद्भुत बात आपको बता रहा हूँ। आप परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से,
प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक को पुकारेंगे, उसको आप पानी पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको आप तेल पे भी कर सकते हैं, कपड़े पे भी कर सकते हैं। अभिषेक यीशु मसीह के नाम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन भैया उसे ट्रांसफ़र करके सेल करना किसने तुझे सिखाया? कौन सी बाइबल में पढ़ लिया? कौन से प्रेरितों को देख के तूने ये धंधा शुरू कर लिया? सुने, ये बिजनेस चल रहा है कहाँ पे? टेंपल के अंदर। अब मैं आपको बहुत गहरी बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह क्रूस पे अभी गया नहीं है, लेकिन पहले कहाँ जा रहा है? टेंपल में, टेंपल को साफ करने के लिए। अगर आप वचन को पढ़ेंगे ध्यान से, अब मैं आपको ओरिजिनल टेक्स्ट बताता हूँ। यीशु मसीह टेंपल के अंदर गया और यीशु मसीह ने देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा है? खरीदो फरोख्त हो रही है बिजनेस चल रहा है परमेश्वर के घर के अंदर, कारोबार चल रहा है। आज भी कई चला रहे हैं। अभी पेंडेमिक चल रहा है, परमेश्वर का कोप पृथ्वी पे है, क्रोध का समय है, लेकिन अभी भी कई झूठे नबी सिखा रहे हैं कि हाउ यू कैन मेक मनी इन द मिड्स ऑफ दिस पेंडेमिक। दे आर गिविंग टिप्स टू मेक मनी रादर देन, बजाय इसके कि लोगों से कहें कि तौबा करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर का कोप भड़का है, परमेश्वर से अपना रिश्ता सही करो, हर तरह का गंध, व्यभिचार, गुप्त पाप अपने जीवन से निकालो, प्रभु के संग जुड़ो, धन दौलत कुछ साथ नहीं जाएगी। बजाय ये सिखाने के सिखा रहे हैं अपनी मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है। जो गोरों से सीख लिया ना कलाम, वो सिखा रहे हैं कि जैसे आइजक ने फैमिन में बीजा 100 गुना पाया, यू हार्नस नाउ ऑन दैट। कि क्यों कोप आया परमेश्वर का, क्यों क्रोध भड़क रहा पृथ्वी के ऊपर, ये रीजन जानने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने तो पहले जोर लगाया था भगाने के लिए, कोरोना भागा नहीं। तो अब दूसरा मैसेज ये है कि हाउ टू मेक मनी इन दिस पैंडेमिक। देखिए कितने भ्रष्ट हैं लोग। ये देखें क्या लिखा है, जीसस वेंट इनटू द टेम्पल ऑफ गॉड एंड कैस्ट आउट ऑल देम that sold and bought in the temple and overthrew the tables and money changers and seat of them that sold doves। दो खास बातें आपको बताता हूँ, मैं सारे टेक्स्ट को आपको बताता हूँ। परमेश्वर के घर को कहा जाता है हेरोन थियोस, हिब्रू में, ग्रीक में, सॉरी, ग्रीक भाषा में हेरोन थियोस का मतलब होता है परमेश्वर का घर। यीशु मसीह कहाँ गया? परमेश्वर के घर के अंदर गया, और वहाँ पे यीशु मसीह ने लिखा है दो काम किए। एक तो यीशु मसीह ने लिखा है टेबल्स को उल्टा कर दिया, मनी चेंजर के टेबल को उलट पुलट कर दिया, और सीट लिखा है दूसरा शब्द, कुर्सियों को उलट पुलट कर दिया। टेबल और कुर्सियां दो चीजें मार्क करें, टेबलों को और कुर्सियों का। मैं आपको बताता हूं ग्रीक वर्ड क्या है। वचन में लिखा यीशु मसीह अंदर गया। यीशु मसीह तो बड़े प्रेमी दयालु हैं, गॉड इज लव, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने कोड़ा बनाया और निकाले जानवर, और टेबल थे ऐसे टेबल को उल्ट पुल्ट किया और कुर्सियों को उल्ट पुल्ट किया। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। वचन में लिखा उलट पुलट कर दिया, और आपको मालूम इंग्लिश में लिखा ओवरथ्रू, उलट पुलट कर दिया। लेकिन आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या है? कैटास्ट्रीफो, जहाँ से अंग्रेजी का शब्द निकलता है कैटास्ट्रॉफी। जब कहीं बाढ़ आती है, जब कहीं जलजला आता है, जब कहीं भूकंप आता है, उसे कैटास्ट्रॉफी बोला जाता है। यीशु मसीह ने कैटास्ट्रॉफी ले आए जाके। जीसस रॉट कैटास्ट्रॉफी इन द टेम्पल। Why? Because they had made the house of God an enterprise, a place of merchandise, a place of marketing, a place of selling products, a place of minting money, a place of making money. Jesus was very wroth. He brought catastrophe. उसने overthrow किया। ग्रीक वर्ड है कैटास्ट्रीफो, कैटास्ट्रॉफी। जलजला आया, भूकंप आ गया वहां पे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रोध में आ गया। और यीशु मसीह ने मनी चेंजर वहां पे लिखा है। मनी चेंजर के लिए कोलीबिस्टिस वर्ड है, कोलीबिस्टिस। ये मनी चेंजर कौन है? ये वेस्टर्न यूनियन मनीग्राम वाले लोग बैठे थे वहाँ पे, मनी चेंज करते थे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर को रोमी सिक्के नहीं चढ़ाए जाते थे, रोम का पैसा नहीं चढ़ाते थे यहूदी लोग, यहोवा परमेश्वर को शेकेल चढ़ते थे। तो ये लोग लोगों को फैसिलिटी देते थे कि आप लेकर आओ रोमी करेंसी, हम आपको देंगे टेंपल की करेंसी, और 15-20% कमीशन खाते थे उसके ऊपर, शायद ज़्यादा भी होगा, मैंने कुछ बुक्स में पढ़ा 15 to 20 परहैप्स मे बी मोर। वो कमीशन लेते और करेंसी को कन्वर्ट करते थे। वहीं पे उन्होंने फॉरेक्स बनाई थी,
वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम अंदर खोला हुआ था। और एक ख़ास बात सुने, वचन में लिखा है यीशु मसीह ने ओवरथ्रू टेबल्स, टेबल को उल्टा कर दिया, कैटास्ट्रोफी ले आया। कैटास्ट्रोफी का मतलब जलजला ले आया यीशु मसीह। ये टेबल क्या है भैया? ये टेबल के लिए ग्रीक वर्ड है ट्रपीज़ा। अब ध्यान से सुने, ट्रपीज़ा क्या होता है। ये साधारण टेबल नहीं है, ये टेबल होते हैं मिनी बैंक, छोटे बैंक है वहाँ पे। ये टेबल का मतलब होता है ब्रोकर ऑफिस, टेबल का मतलब होता है विचोलिए का ऑफिस है ये। वहाँ विचोलिए बैठे हुए जो मनी एक्सचेंज कर रहे हैं, विचोलिए। क्योंकि कई फेस्टिवल मनाने डायास्पोरा जूइश लोग आते हैं जो अलग अलग देशों में तितर बितर हो गए हैं, वो अलग अलग देशों की करेंसी लेकर आते हैं। ये भैया उधर बिजनेस चल रहा है, उसे चेंज करते हैं और हैवी कमीशन लेते हैं। ब्रोकर के ऑफिस हैं, बैंक है, ट्रपीज़ा का मतलब लोन प्लेस है जहाँ पे कमीशन दलाली की जाती है। कहाँ पे? यहोवा के घर के अंदर। ट्रपीज़ा का मतलब ये है। और दूसरा शब्द क्या लिखा है? ये लिखा है मनी चेंजर एंड द सीट ऑफ देम दैट सोल्ड डब। सीट, कुर्सी। अब देखिए कुर्सी के लिए वर्ड क्या यूज हुआ है। कुर्सी के लिए वर्ड हुआ कैथीड्रा, जहाँ से शब्द निकलता है कैथीड्रल। लोग चर्चों के नाम रखते हैं, सेंट पीटर कैथीड्रल, सेंट मैरी कैथीड्रल। कैथीड्रा का मतलब वो कुर्सी जहाँ पे एक शिक्षा देने वाला बैठता है, जहाँ पे जज या न्यायी बैठता है। हर टेम्पल के अंदर जो कुर्सियाँ थी जहाँ से कलाम सिखाया जाता था, जहाँ से न्याय किया जाता था, उन कुर्सियों पे आज कबूतर बेचे जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, यहोवा के घर में दलाली का अड्डा है, और यहोवा के घर में जो कुर्सियाँ, उसका कलाम, उसकी व्यवस्था और जजेस जिनके ऊपर बैठते थे न्यायी, उन कुर्सियों को बिजनेस के लिए यूज़ किया जा रहा है। यीशु मसीह कैटास्ट्रोफी ले आए जाके, यहाँ वर्ड है कैटास्ट्रोफे, ही ओवरथ्रू एवरीथिंग। ब्लेसेड आर वाला जीसस नहीं है। यीशु मसीह अपने पहले ही सरमन में बैंड बजा रहा है झूठे लोगों की। उसने कन्फ्रंट किया उन्हें, फरीसियों को, सदूकियों को, जिनका धर्म पैसे कमाने का जरिया था, जिनका धर्म लोगों के अंदर वाहवाही लेने का, चौकों में खड़े होकर प्रार्थनाएं करना, लोगों में अपने आप को बड़े खलीफा दिखाना, रब्बी कहलवाना। आपको मालूम, रब्बी, उस्ताद, पापा जी, डैडी जी। पोप का मतलब क्या होता है आपको मालूम? पापा। ये पदवियों के, पोजीशनों के भूखे लोग थे और आडंबर करते थे और दिखावे की भक्ति करते थे। जब यीशु मसीह ने इनके पखंड को खोला और यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा इस पे हथौड़ा चलाया, जो झूठा कलाम ये देते थे, तोड़ मरोड़ के अपने मकसद के लिए कलाम सिखाते थे। और आखिरी बात यीशु मसीह ने क्या की? इनके पैसे के ऊपर जब अपना अंगूठा रखा, ये बिजनेस चलता था। इसके बाद ही जब यीशु मसीह ने ये हैकल के अंदर जाके काम किया, इसके बाद उन्होंने स्कीम बनाई कि कैसे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया जाए। दिस इज़ वाई ही डाइड। यीशु मसीह ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यीशु मसीह सबके संग मिल के चलने वाला, सबके संग बना के रखिए, हम सब मसीह में एक हैं, ऑल इंक्लूसिव गॉस्पेल प्रीच करने नहीं आया है। यीशु मसीह परमेश्वर के सत्य का कलाम देता था। आप भी सत्य के संग खड़े होइए। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित कलाम के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सुनिए ध्यान से, आज शाम को एक मीटिंग है जिसमें एक पास्टर जी हैं, कपिल शर्मा, उन्होंने मुझे कल कहा कि 8 बजे से एक मीटिंग में मैं प्रचार करूं, तो ये सत्य का कलाम वहाँ भी हम बांटेंगे। तो शाम की सभा हम 5:30 बजे आज करेंगे, तो छोटी रखेंगे ताकि मुझे थोड़ा समय दूसरी मीटिंग के लिए जो 8 बजे शुरू होगी उसके लिए भी हमें टाइम मिले। परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है हमारे जीवन में। परमेश्वर अद्भुत योजनाएं रखी हैं हमारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह की।